All right. Gently close your eyes. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. All right, so we continue from yesterday's side heading, which was that judge doesn't tell the whole truth. तो जज के बारे में हम ये और एक बात समझ गए कि हमेशा जज पूरा का पूरा सत्य नहीं बताता. Positive judgment can expose the unconscious acceptance of inner devaluation. It can make you feel better, providing temporary relief from the berating of your judge. It can also reflect what you have at some time experienced to be true, as a deep insight, a moment of bliss, or an openness from meditation. All of these are important and useful at times. इस पैराग्राफ पे हम लोग कल रुके थे कि उसके पॉजिटिव चीजें और अभी जैसे या हु सेड जस्ट नाउ कि अपना कुछ अच्छा भी बताता है ना. हाँ, वैशाली सेट कि भाई देर आर गाइड कर भी है ना वो अपना. तो समझो अगर डीप इंसाइट आता है हमें या एक क्षण है, मोमेंट ऑफ ब्लिस, हैप्पीनेस का, या तो मेडिटेशन में होने वाले जो अनुभव है, ये भी काम के और महत्व की चीजें ये भी होती है. तो अब आगे पढ़ रही हूँ मैं. बट इवन पावरफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रूथ डोंट चेंज लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स about the self unless they are taken into the soul and understood. लेकिन क्या होता है कि वो उतना क्षणिक हो जाता है. तभी इंसाइट मिला, एक अंडरस्टैंडिंग आई, कहीं कुछ दिमाग की बत्ती जल गई और बहुत अच्छा लग गया, समझ गए, लेकिन उतना ही देर के लिए. फिर से हम लोग वी आर बैक टू बीइंग ह्यूमन. From those are those moments of divinity that we experience, especially all of us, since we all are meditators. We do experience those moments of divinity. We do experience the moments of completeness where we can feel that we are not this body, we are not this mind, we are the soul. We feel that, but then it again comes back to the human experience. Yeah, and we keep going back to our conditional repetitive self. So this is what happens unless you take it in the soul and understand. उस स्तर तक जाना होगा, उस आत्मिक लेवल तक जाना होगा अगर हमें इसको सस्टेन करना है तो. Simply using the insight as a new standard or belief does not accomplish this. Understanding and integrating an experience means recognizing the implications that this new awareness has on your experience of your life as you learn to live in accordance with it. वो जो क्षणिक है ना, उसको बढ़ाना होगा. So what we experience in a few moments, in a minute, in a few seconds, that now we have to find a continuity of that experience in our everyday life. जैसे हम कहते हैं कि आधा घंटा बैठ के जो भी तुम मेडिटेशन जिसको कह रहे हो, वो मेडिटेशन नहीं है, वो मेडिटेशन की तैयारी है. चाहे ब्रेथ अवेयरनेस हो, चाहे विजुअलाइजेशन हो, ये सब मेडिटेटिव स्टेट की तैयारी है. तो वो मेडिटेशन जो समाधि अवस्था जिसको कहते हैं, वो अवस्था तो कायम होती है. अगर दिन भर तुम उस अवस्था में रहते हो तो कह सकते हैं हाँ, यू आर विद द सोल. यू आर नॉट विद द बॉडी, यू आर नॉट विद द माइंड, यू आर विद द सोल. सॉरी. Positive judgment only superimposes a new belief about yourself on top of the old one. नेगेटिव ना बोल के पॉजिटिव बोलना, तो जो नेगेटिव था उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया अभी पॉजिटिव. आई थिंक शैलजा यू विल फाइंड सम इनसाइट्स ओवर हियर. या बिकॉज यू हैव रिप्लेस्ड इट विथ positive. So everything, so this is your new belief, which is good because it is progress, right? But again, one belief system is replaced by another belief system. It tries to assert something that is not an experience of what you experience as truth. Now, this
पॉजिटिव जो तुम्हारी स्टेट हो गई है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को कंप्लीटली प्रैक्टिस कर करके एफर्मेशंस दे के वगैरह वगैरह उसको पॉजिटिव बना दिया. लॉट ऑफ सेल्फ वर्क हैज गॉन इनटू इट, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, राइट? So with all your self work you have replaced the negative belief system with the positive belief system, but this positive belief system should become life experience for you, which I think is becoming for you, what you were sharing with me. Yeah, it's becoming your life experience. So that then becomes your truth. All right. So the new belief system has to start working. Just believing intellectually or believing on it mentally is not enough. It has to become your life experience. All right. It can never root out the original conviction of your own lack of self-worth. This is why you will often find yourself distrusting the praise of others, making inner comments. You know, कोई कोई तुम्हारी तारीफ कर दे, right? तो तुरंत अंदर की आवाज बोल उठती है, the fact that they say that shows they don't know me very well. अगर कोई तुम्हारे हाँ तुमको क्या जानो, हाँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव, लाइक अभी किसी ने हाँ यू ओनली आई थिंक सेड, है ना, कि तुम कैसे भी तुम सुंदर ही दिख रही हो, बट ओ नो नो, द माइंड विल रिजेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो, राइट? इट विल से दैट तुम ये बोल रहे हो, तुमको नहीं मालूम मैं क्या हूँ, कौन हूँ, राइट? सो द फैक्ट इज पॉजिटिव जजमेंट इज लाइक मेकअप. It must always be reapplied and a good hard rain will wash it away. But I will say this, because since I'm giving you example, Shailaja, I'll say this, that a good hard rain will be its test. If it doesn't wash away, then it is not makeup. It has really, really, truly become your life experience and has been completely replaced. Yeah. बट हियर देयर थिंग, बट मेनी देयर आर मेनी पीपल यू नो कि बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब भी एप्लीकेशन का टाइम आता है या परीक्षा म्हणतो ना आपण, व्हेन देयर इज अ टाइम फॉर टेस्ट, देन एवरीथिंग इज लाइक सारा फिलोसॉफी दिमाग से उड़ जाता है, तभी फिर कुछ याद नहीं आता. The only real alternative to self judgment is knowing the truth about who you are. So to some extent I believe that it's not just that your belief system has been replaced, you have begun to know the truth that you are. I've seen the kind of work you have put on yourself. So ये जो खुद का सत्य जो है, ये खुद का सत्य जब हम जानने लगेंगे तो ये सेल्फ जजमेंट बंद हो जाएगा. If you have deep belief that you are worthless, you must discover where that belief came from and why you believe that it is true. Yeah, and this is what we do through PLR, and which you have gone through, and you have found out that where is this coming from, where is the negative self image coming from, और जहां से वो आ रहा है खुद के बारे में जो भी तुम सोचते हो, ये कहाँ से सोचते हो, क्यों सोचते हो, ऐसे तुम्हारी इस जिंदगी में या किसी और जिंदगी में ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बन गया, और क्यों तुम इसको सच मानने लगे. Until you understand that, nothing fundamentally will change. हर एक चीज का अगर हमें रूट पता चल जाए ना, तो उस चीज को बदलनी बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज हम जान जाते हैं, हम समझ लेते हैं कि ये कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है. Once you know deep inside you with a direct and felt sense that you have inherent value and you are fully acceptable to yourself, then you will begin to free yourself from the need for positive judgment and approval from others and from your own judge. सबकी वाहवा चाहिए, खुद की भी वाहवा चाहिए, ये सब वाहवा से छुटकारा ले लोगे जब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी आंतरिक कीमत क्या है. What is your inner truth and what is your inner value? एक बार ये समझ में आ गया ना, तो उसके बाद में you will accept yourself completely. फिर शंका नहीं करोगे खुद पे कि नहीं, मैं जानती हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं जानती हूँ मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं इतनी अवेयरनेस की प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन ऐसा ये होता है, वो होता है, वो सब बंद हो जाएगा.
The path to truly knowing who you are requires challenging the presence of the judge, which means challenging the mind. Yeah, in a way, because this judge is a part of a very, very important part of your mind, you know. You must find the courage and wisdom and determination and clarity, the compassion and desire to see what the truth is and stay with the process of supporting that truth. तो तुम्हारा सत्य क्या है, ये जानने की हिम्मत दिखानी होगी, विवेक दिखाना होगा, विजडम है, दृढ़ता दिखानी होगी जो डिटर्मिनेशन है, और क्लैरिटी। बिल्कुल, बिल्कुल क्लियरली समझ गई हूँ कि ये माइंड जो है ये कैसे वर्क करता है, और अब मैं इस माइंड को शांत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसको शांत हमको युद्ध, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र करके शांत नहीं करना है। हमने बड़ी करुणा के साथ, प्रेम के साथ उसको शांत करना होगा। So we have to have the compassion and to desire what the truth is and stay with the process of supporting the truth. मेरा सत्य को आधार मैं बनूंगी, जो मेरा सत्य है उसका आधार भी मुझे बनना होगा। All these qualities are needed to make space for your own experience, regardless of whether you consider good or bad, right or wrong, joyous or painful. सुख दुख होने दे, सही गलत होने दे, यू नो, राइट और रॉन्ग होने दे, या गुड एंड बैड, अच्छा बुरा होने दे, कुछ भी होने दो, लेकिन खुद के अनुभव में बिना जजमेंट के खुद का जो सत्य है ये अनुभव में लाना ही होगा। अदरवाइज अगर ये सत्य को हमने इस प्रोसेस के माध्यम से अगर नहीं लाया, योर फीलिंग्स ऑफ शेम, गिल्ट, wrongness and selfishness provoked by your judge will make it impossible to stay with the richness, challenge and mystery of what you find. Who am I? खुद की खोज में हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे खुद को जानेंगे, पूर्ण हूं मैं, इस वाक्य तक, इस अनुभव तक जब हम जाएंगे तो वो कितना रिच है, वो कितना चैलेंजिंग है और गुड भी उसका, ये सब हम जान पाएंगे। लेकिन अगर वो मार्ग पर हम हिम्मत से और करुणा से नहीं चले तो शेम, गिल्ट, रॉन्गनेस एंड सेल्फिशनेस हमारा अंदर का जज बोलते रहेगा, हमें लज्जाते रहेगा, यू नो, इट विल मेक यू फील अशेम्ड and it will make you feel guilty and it will make you feel wrong. The process you are setting in motion in the first few chapters of this book will bring you into more awareness of and contact with your judge, which means you will be more vulnerable to the feeling of being attacked. तो जब खुद को ही चैलेंज करेंगे ना, तो जैसे कि खुद पे ही हम वार कर रहे हैं, तो ये कोई सुखद अनुभव नहीं होता। हाँ, खुद को ही रोकने की कोशिश, पतंजलि जिसको प्रतिप्रसव कहते हैं या प्रत्याहार कहते हैं, तो ये जो होता है ये कोई सुखद अनुभव नहीं होता। दिस इज नॉट एंजॉयबल और कंफर्टेबल। योर जज विल से दैट दिस इट इज बैड एंड मस्ट बी अवॉइडेड। अगर तुम तुम्हारी बिलीफ सिस्टम चेंज करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंदर का जज बोलेगा नहीं नहीं ये गलत है, ये बुरा है और ये तुम मत करो करके। But if you are willing to bring the judgment experience into consciousness and be compassionate and strong in supporting your growing openness and vulnerability, you can undertake this work in a meaningful way. लेकिन अगर हमारी सजगता में हम करुणा ले आए, हम खुद को ही सपोर्ट करें, तो खुद को खुलेपन से रख पाएंगे, डरेंगे नहीं हम। यू नो दिस वर्ड अगेन, वल्नरेबिलिटी, हम कभी किसी के सामने पूरी तरह खुद को खोलते नहीं है। हमारा मन, वी नेवर कीप अवर हार्ट्स ऑन द टेबल, यू नो, पूरी तरह से हमारा मन कभी नहीं खोलते हैं हम, क्योंकि अगर किसी ने इसका गैर फायदा उठा लिया, तो किसी ने दुख दे दिया, तो किसी ने दर्द दे दिया, तो ये हम डरते रहते हैं। तो इसलिए
हमारे अनुभव में ये जो हमारा सत्य है, ये जो हमारी सजगता जो हमें आई है, उसको हमारे अनुभव में हिम्मत से और करुणा से, कंपैशन एंड करेज, इससे हमें लाना होगा. दिस इनर वर्क इज व्हाट विल रिकनेक्ट यू विथ योर सोल नेचर. ये जो मैं अभी मैंने शैलजा से किया ना, आई हैव सीन हाउ मच ऑफ सेल्फ वर्क दैट यू हैव डन. हम सब करते रहते हैं. इट्स क्योंकि मैं शैलजा को इंटीमेटली जानती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन हम सब हमारी जिंदगी में ये करते रहते हैं, सेल्फ वर्क करते रहते हैं. और ये जो सेल्फ वर्क हम करते हैं, इससे आई एम सॉरी, दिस इनर वर्क इज व्हाट विल रिकनेक्ट यू विथ योर सोल नेचर. इससे हम सच में, सही में, अगर हमारे सारे मुखवटे हटा दिए तो हम कौन है, क्या है, ये हमें ख्याल आ जाएगा. Through it, you will discover a true guide for living and understanding your life, one that can replace the judge you have grown up with. तो जो जज के साथ जिंदगी तुमने अभी तक की जो बिताई है, उसको छोड़कर खुद को सही मायने में हम कौन है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे. Your true guide arises spontaneously through your contact with the awareness of your own life. Rama and Mara, right? And like I was saying, the Mithu Mia has to be replaced with the true judge. Not the mind judge, but the soul. Soul Speaks. There's a beautiful book called Soul Speaks. I think it's by Jane Roberts. Shade Speaks में Soul Speaks नामक एक किताब है उनकी. तो if I'm not mistaken, हाँ. But there's a Soul Speaks. सच्ची में अगर आत्मा बात करने लगेगी तो उसकी बातें कैसी होगी? आत्मा के गुण हमने पहले ही चैप्टर में हमने देखे. वो गुणों को अगर हम फिर से पढ़ेंगे, फिर से दोहराएंगे, फिर से समझेंगे और उसका अनुभव लेने की कोशिश करेंगे तो हम आत्मा की आवाज सुन पाएंगे. सो योर ट्रू गाइड अराइजेस स्पॉन्टेनियसली थ्रू योर कॉन्टैक्ट एंड अवेयरनेस ऑफ योर ओन लाइफ. और खुद ब खुद अगर आप चाहते हो कि या आत्मा ने खुद से मुझसे बात करनी चाहिए, या आत्मा की आवाज खुद ब खुद आनी चाहिए, स्पॉन्टेनियसली, उत्स्फूर्त, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसकी सजगता हमने डेवलप करनी होगी. क्या मतलब होता है हम जो जिंदगी जी रहे? जब कोई भी सामने आता है या कोई भी व्यक्ति, वस्तु, विषय, मैं कहती रहती हूँ, इनमें से कुछ भी चीज सामने आती है तो हमारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं कैसे होती है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको सजगता में लाएंगे. मेरे डिफेंस मैकेनिज्म्स कौन से है? मैं खुद को डिफेंड, हाउ ऑफन डू आई डिफेंड माई सेल्फ? इस चीज को मैं बस एक कुछ ही उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन जिंदगी के अनेक पहलू है. कौन सी चीज मुझे ट्रिगर करती है, कौन सी चीज मुझे इंस्पायर करती है, मेरे ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं, मेरे इंस्पिरेशन पॉइंट्स कौन से हैं, मेरे थॉट्स किस प्रकार के होते हैं, क्या मैं नेचुरली डिस्ट्रस्टफुल हूँ या बहुत आसानी से विश्वास रख लेती हूँ, मैं कौन हूँ? ये जब खुद को सजगता से, इसकी सजगता जैसे हम डेवलप करते जाएंगे तो हमारे आत्मा की आवाज हमें सुनाई देने लगेगी. दिस गाइड रिस्पॉन्स टू द ट्रुथ ऑफ हु यू आर एंड व्हाट इज नीडेड. ये सही बताएगा कि तुम कौन हो और किस चीज की जरूरत है. ये दोनों चीज है. द प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग विथ योर जज इज thus simultaneously immediate and long term. तुरंत भी हम इस ये जो जज के साथ काम करना है, ये तुरंत भी होता है, इमीडिएट भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है. बहुत लंबे समय तक हमें ये करना होता है. You must confront the judge as you live your life now. Otherwise, the judge work will remain a good idea saved for some future time.
अब भी इस क्षण शुरुआत करनी होगी, वरना हाँ फिर कभी करेंगे, हाँ बाद में अंदर की आवाज सुनेंगे, तो ये फ्यूचर में ही रहेगा, वो टुमारो नेवर कम्स। ऑन द अदर हैंड द प्रोसेस इज नेवर फिनिश्ड। तो एक तो ये बात बनती है कि तुरंत शुरुआत करनी होगी, कल देखेंगे ये नहीं चलेगा। और दूसरा, ये जो क्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। क्यों कभी नहीं खत्म होने वाली? Why is it a never ending process? Because life is never ending. Because experiences are never ending. जिंदगी में सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आते ही रहने वाले हैं, लोग मिलते ही रहने वाले हैं। हम कोई गुफा में, कोई जंगल में, कोई पर्वत पे जाके नहीं बैठने वाले हैं। तो जैसे जीवन अनुभव हम हमारे होते जाएंगे, वैसे इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली, वरना वो जो पुराने सर्किट्स है वो फिर से रिएक्टिवेट हो जाएंगे। आणि आपण मराठीत म्हणतो ना, ये रे माझ्या मागल्या, यू आर बैक टू स्क्वेअर वन. Yeah, you will go to, so it's a continuous process, developing this awareness, becoming aware of the different aspects of who you are, catching yourself thinking thoughts about you, feeling what feelings you are, becoming aware of the feelings that you are having or the emotions that you are experiencing. This is a continuous process. The practice of working with your judge is the simultaneously immediate and long term. You must confront the judge as you live your life now. Otherwise, the judge work will remain a good idea saved for some future time. On the other hand, the process is never finished. It will continue throughout your life, for the judge's influence runs deep in your soul and impacts with amazing subtlety. ये जो मन है, ये जो जज है, मन का वो भाग इतनी सूक्ष्म काम करता है। अगर हम लेमैन की भाषा में बोले तो सुमड़ी में काम करता है, इतना सूक्ष्म तरह से काम करता है कि पता भी नहीं चलता ये क्या कर गया, और वो अवेयरनेस में आते आते वक्त लग जाता है। इसलिए ये कंटिन्यूअसली ये करना होगा। एंड अच्छा, और एक कारण है क्यों क्यों कंटिन्यूस करना होगा, क्योंकि अभी जो जैसे तुम हो, जैसे मैं हूं अभी, जिस तरह के सोचती हूँ, जिस तरह का सेल्फ टॉक देती हूँ, जिस तरह के सेल्फ जजमेंट्स करती हूँ, ये जो मैं हूं, ये क्या आज के दिन का परिणाम है? नहीं। ये क्या गए 1 महीने का परिणाम है? नहीं। मेरी उम्र का परिणाम है ज्यादातर। लेकिन वो उम्र का परिणाम भी तो कहाँ से आया? हमने सब कर्म के सिद्धांत के का अभ्यास किया है। हाँ, आज का जो प्रारब्ध है वो संचित में से आया है, राइट? तो वो जो भी अनुभव हमारे संचित में है, उसके जो भी हमारा जो भी संचित है, वो संचित अब प्रारब्ध बनते जाता है। और इसलिए ये काम कंटिन्यूअसली करते रहना होगा, क्योंकि वो कर्म संस्कार जो है ये उभरते ही रहेंगे। डर, गिल्ट, फियर, शेम, एंगर, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली आती ही रहेगी, ऊपर ऊपर ऊपर। डिस्ट्रस्ट, डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली आती रहेगी। तो ये जज के ऊपर हमको कंटिन्यूअस काम करना होगा। The journey is not easy, but few others are more rewarding in expanding your sense of who you are and in allowing you to live a full and meaningful life. आसान नहीं है, लेकिन इससे बेहतर कोई मार्ग भी तो नहीं है कि जो हमें जिंदगी को आनंद भरा अनुभव हमारी जिंदगी को बना सके। तो ये क्रिया तो हमें करनी ही होगी, ये बदलाव लाना है तो ये क्रिया हमें करनी होगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो व्हाट इज द जज नामक ये जो सेकेंड चैप्टर था, ये यहाँ पे खत्म हुआ। और अब पॉइंट्स टू रिमेम्बर है जो मैं पढ़ रही हूँ, और उसके बाद एक्सरसाइज आएगा। सो आई विल जस्ट फिनिश रीडिंग पॉइंट्स टू रिमेम्बर।
पहला पॉइंट, द जज इज द फोर्स इन यू दैट कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट्स and assesses your worth as a human being and thus limits your capacity to be fully alive in the present moment. ये पहला बोध हमने इस चैप्टर में सीखा कि वो जो जज है वो कंटिन्यूअसली तुम्हारा प्रमाण पत्र निकालते रहता है और तुम्हारी कीमत तय करते रहता है, और ये कीमत बनाने के वजह से तुम्हें वो सीमित करते रहता है। जब तुम 100% हो तब वो बोलता है ओ अभी तुम 20 हो, अभी 25 हो, अभी 28 हो गए। हाँ, तो ये हमें सीमित करते रहता है। उस सीमितता, उस लिमिटेशन के वजह से हम जिंदगी का जो इस क्षण का अनुभव है ये पूरी तरह से हम नहीं ले पाते। दूसरा मुद्दा, द जजेस वॉइस गाइड्स योर लाइफ कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। ये जज की जो आवाज है, तुम्हें अवेयरनेस में हो या ना हो, कॉन्शियस हो अनकॉन्शियस हो, लेकिन यही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। किस तरह से? हाउ डज इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली गाइड योर लाइफ? इट गाइड्स योर लाइफ कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली थ्रू ओपिनियंस, एडवाइस, वार्निंग्स, सजेशंस, बिलीफ्स, evaluations and admonishments about all aspects of your behavior and your inner life. तीसरा point, the judge's function is to maintain the status quo in two ways. जो जज की भूमिका है वो जैसी है उसकी कुर्सी नहीं हिलनी चाहिए, ये उसकी जगह, हाँ बिल्कुल हमारे पॉलिटिशियंस की तरह उसकी जगह नहीं हिलनी चाहिए। वो नहीं हिलने के लिए, वो स्टेटस को बनाए रखने के लिए, कायम रहने के लिए दो तरीके वो यूज करता है। एक, it keeps you away from what it considers to be dangerous or unmanageable parts of yourself. वो तुम्हें खुद को चैलेंज नहीं करने देगा। जो जो जैसे मैंने एग्जाम्पल तभी दिया था कि गुस्से को पूरी तरह वो तुम्हें अनुभव नहीं करने देगा, क्योंकि वो बोलेगा अरे हार्ट अटैक आ गया तो इतना बीपी मत बढ़ाओ, या ये बर्स्ट हो सकता है, कुछ तो भी सीवीए हो सकता है तुम्हें, सेरिब्रोवास्कुलर और कार्डियोवास्कुलर, आइदर ऑफ इट, बट तुम्हें सीवीए हो सकता है। एनी ऑफ दिस एक्सीडेंट्स हैपन, सो इट कैन बी डेंजरस एंड देयर आर सम पार्ट्स, अरे यार तुमसे मेडिटेशन नहीं होगा, यार तुमसे फोकसिंग नहीं होगा, तुमसे एकाग्रता नहीं होगी, तुम नहीं एक टाइम पे एक ही काम कर पाओगे, ये बोलकर वो तुम्हें रोक लेता है। एंड इट डायरेक्ट्स यू टुवर्ड्स व्हाटएवर आइडियाज इट फील्स विल मेक यू एन एक्सेप्टेबल सक्सेसफुल पर्सन। और जो कहते हैं ना ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, जो तुम्हारा काम उसको लगता है उस पे वो तुम्हें लगा देता है ताकि तुम्हारा एक्सेप्टेंस भी तुम्हें मिले और सक्सेस भी तुम्हें सक्सेसफुल हो ऐसा तुमको लगे या दूसरों को लगे। Self judgment is based on the accumulation of all the knowledge you believe you need to be successful, safe, supported, recognized and loved in the world. कौन नहीं चाहता दुनिया में, कौन नहीं चाहता कि दुनिया में वो सक्सेसफुल है ऐसा इस तरह से पहचाना जाए? कौन नहीं चाहता सुरक्षित महसूस करना? कौन नहीं चाहता कि उसको आधार है ऐसा महसूस करना? कौन अकेला खड़े रहने की हिम्मत? वो तुम अकेले मत खड़ो, तुम ग्रुप में ही ठीक हो। ये जो जज हमें बोलते रहता है क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है कि तुम अकेले खड़े रह सकते हो। सो सपोर्टेड, रिकॉग्नाइज्ड, और तुम्हारी पहचान, नेम, फेम तुम्हारा होना ही है, और दुनिया ने तुम पर प्यार करना बहुत जरूरी है। और इन चीजों के लिए आज तक जो भी ज्ञान तुमने इकट्ठा किया हुआ है, जो भी नॉलेज ओवर मेनी मेनी लाइफ टाइम्स जो तुमने नॉलेज इकट्ठा किया है, और इफ यू डोंट बिलीव इन मेनी लाइफ टाइम देन दिस होल लाइफ टाइम, जो भी नॉलेज इकट्ठा किया है वो सेल्फ जजमेंट के लिए यूज करता है। ये जज वो सारा नॉलेज सेल्फ जजमेंट के लिए यूज करता है ताकि दुनिया में, दुनिया की नजरों में और खुद की नजरों में तुम सुपरस्टार लगो, इसलिए वो ये नॉलेज यूज करते रहेगा। नेक्स्ट, कंपैरिजन इज अ वेरी क्लोज कजन ऑफ सेल्फ जजमेंट।
It is useful for improving many aspects of our world. However, comparison becomes self-destructive when it becomes constant self-assessment relative to the behavior and appearance of others at the expense of aligning with the truth of your own experience. कंपैरिजन हमें दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के साथ कंपैरिजन हमेशा किया जाता है, तो ये कंपैरिजन सेल्फ जजमेंट का बिल्कुल भाई है। नेक्स्ट पॉइंट, the judge overrides your inherent intelligence and your direct response to life by superimposing its beliefs about what is meaningful and real. If standards are learned from others and they can run counter to what you yourself want, feel and know to be true. तुम क्या चाहते हो तुमसे नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली तुम्हारे लिए ये अच्छा है, यही तुम्हारा जज, तुम यही करो, यही तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हें तुम्हारे अंदर एक इनहेरेंट एक इंटेलिजेंस है, इस बात को वो कबूल नहीं करता। मैं जो कहता हूं वो तुम करो। और इसलिए जिंदगी के अनुभव पूर्ण तरह से हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट, one of the greatest dangers of becoming aware of self judgment and its negative effects is that awareness will become the basis of more self judgment. अगर सजगता में आ गए तो सजगता के माध्यम से हम जजमेंट करेंगे, अलग तरह से हम जजमेंट करेंगे। अगर सजगता में आ गया कि हाँ यार, मैं तो नेगेटिव बहुत बात करती हूँ खुद के बारे में, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये तुम्हारी सजगता में आ गया तो वो जजमेंट आ जाएगा कि तुम खुद के बारे में नेगेटिव हो, फिर तुम क्या कहोगे, ओ मैं खूब बहुत नेगेटिव हूँ खुद के बारे में, राइट? सो एक जजमेंट से दूसरा जजमेंट रिप्लेस हो जाएगा। Positive judgment can expose the unconscious acceptance of your inner devaluation, but it can never root out the original conviction of your own lack of worth. और जब हम पॉजिटिव जजमेंट करते हैं तो खुद को पता चल जाता है कि हम खुद को कितना कम समझते हैं या डीवैल्यू करते हैं, ये पता चल जाएगा, अवेयरनेस में आ जाएगा, लेकिन वो जो लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है इसको मिटा नहीं पाएगा। Judgment, comparison, and self-blame can be transformed only by coming to understand how your sense of who you are and the options open to you is determined by your past experiences and beliefs. मैं जो भी हूँ आज, जो पहले मैंने किया है, जो पहले मैंने सोचा है, जो पहले मेरे साथ हुआ है, जो जो अनुभव मैंने अनुभव किए हैं, उसके वजह से मैं आज खुद को सो एंड सो समझती हूँ। आज अगर मैं अलग तरह से कुछ करूंगी तो ये जो मैं खुद को समझती हूँ ये बदल जाएगा, हाँ या ना, है कि नहीं? what I am thinking about myself as today comes from my past experience, but my present experience is going to change that. Is that right? है ना? तो ये जो पास्ट बिलीफ्स और पास्ट एक्सपीरियंस है, इसमें से जजमेंट आता है, कंपैरिजन आता है और सेल्फ ब्लेम भी, यार मैंने ही गलती कर दी, यार मैंने नहीं बोलना चाहिए था, हाँ मैं जानती थी मैंने चुप बैठना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं तभी बोल चुकी, तो वो दिल से बोला नहीं गया, राइट? वो इट वाज़न्ट सोल स्पीक्स, राइट? इट वाज द माइंड टॉकिंग। नेक्स्ट, once you know deep inside you with a direct and felt sense that you have inherent value and are fully acceptable to yourself, then you will begin to free yourself from the need for positive judgment and approval from others and from your own judge. एक बार खुद की कीमत, अगर मैं एक बार जान गई कि मैं आत्मा हूँ, फिर मैं कौन हूँ ये सोचने का काम भी तो नहीं है। अगर मैं समझ गई कि मैं पूर्ण हूँ, मैं होल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, आई एम एवरीथिंग, आई एम नथिंग, नथिंग इन द सेंस नॉट एज एन एम्प्टीनेस, नथिंग, यू नो, अ डायनामिक नथिंग। वंस यू अंडरस्टैंड हु यू आर, तो फिर क्यों कोई सवाल ही, जजमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। एक बार पता चल गया कि मैं कौन हूँ, फिर क्यों फिर से सवाल उठेगा। योर ट्रू गाइड, जैसे तुम्हें पता है, मुझे पता है मेरा नाम आरती है, तो मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है ना, अरे मेरा नाम क्या है, क्या ये है, हाँ
Rita, Lina, Meena, whatever, all these different names. I don't even have to think about it. I know that I'm Aarti. उस श्योरिटी से जब मैं जान जाऊंगी कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, दैट आई एम कंप्लीट, आई एम होल, आई एम पूर्ण, ये एक बार समझ में आ गया तो सवाल सब बंद हो जाएंगे, सोचना भी बंद हो जाएगा, जजमेंट्स भी बंद हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा. Last point, your true guide arises spontaneously through your contact with the awareness of your own life. This guide responds to the truth of who you are and what is needed. तो ये जो आत्मा की आवाज है, ये जो सच्चा गाइड है, वो उत्स्फूर्तन तभी उभरेगा जब हम जिंदगी के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड होंगे. हम कभी भी किसी भी चीज से पूरी तरह कनेक्ट नहीं होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं. जो लोग सजगता में आए हैं वो लोग कोशिश करते रहते हैं हमारे जैसे, लेकिन हम खाना खाते वक्त हम खाना कभी नहीं खाते, या तो बातें करते हैं, या तो न्यूज देखते हैं, या तो टीवी देखते हैं, या तो किताब पढ़ते हैं, या तो ये सोचते हैं, या कल जो हुआ था उसके बारे में सोचते हैं, पर हम सिर्फ खाना कभी नहीं खाते. हम्म? हम कोई भी काम करते वक्त सिर्फ वो काम कभी नहीं करते. बहुत सिंपल है. अगर आप कुछ अब ज्यादातर महिलाएं हैं यहाँ पे, रोटी बनाते वक्त देखो कितना मैकेनिकल जॉब है. सिर्फ रोटी बनाते हो क्या आप पूरा ध्यान देके? जरूरत ही नहीं है, हाथ कर लेते हैं. मन तो भटकने के लिए फ्री है. अगर हम हर पल का, हर कार्य का, हर क्रिया का, हर कर्म का अनुभव पूर्णतः से कंप्लीट अवेयरनेस के साथ लेने लगेंगे तो ये खुद से बात करेगी हमारी आत्मा, और वो सच्चाई की तरफ हमें ले जाएगी. और उसके लिए क्या करना जरूरी है ये भी वो हमें बताएगी. यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर खत्म हुआ. अभी पहले चैप्टर के एंड पे जैसे उन्होंने प्रैक्टिस सेंसिंग अलाइवनेस जो उन्होंने दिया था, मैंने परसों फिर भी व्हाट्सएप पे शेयर किया, या कल या परसों, तो जहाँ पे उन्होंने हमें उदाहरण दिया था कि कोई भी रोजमर्रा के काम ले लो, डेस्क साफ करना या बर्तन धोना या पोछा लगाना या झाड़ू मारना, और एक एक अनुभव लेने को बोला ना. पहले जो कपड़ा या झाड़ू आप हाथ में ले रहे हो, या जो बर्तन है, जो साबुन है, इसको हाथ में पहले महसूस करो, वो कैसे महसूस हो रहा है. उसके पहले तुम अंदर देखो कि तुम्हारा मूड कैसा है, क्या इस काम के लिए तुम्हारा मन खुशी खुशी ये काम कर रहा है, या न्यूट्रल मोड में कर रहा है, या नेगेटिव मोड से कर रहा है ये, और कैसा तुम्हें. फिर वो चीज हाथ में लेके उसका वेट, टेक्सचर, शेप, इसको महसूस करो. उसके बाद वो करते वक्त तुम्हारे मन में कौन सी फीलिंग्स आती है, कौन से इमोशंस तुम्हें महसूस होते हैं, इसको देखो बीच बीच में रुक रुक कर. और फिर एक लंबी सांस लो, और सांस लेके देखो कि तुम्हारे शरीर में तुम्हें कैसा महसूस होता है. बीच बीच में ये भी करो कि पहले तो सांसों को ऑब्जर्व करो, क्या तुम्हारी सांस रुकी हुई है, या तुम्हारी सांस शैलो है, या डीप है, या रिलैक्स्ड है, या एक्सपैंडेड है, जो भी है. याद है ये हमने बात की थी कि इसका अनुभव लेना है, और लास्ट में स्टेप 3 में जो भी इमोशनल या फिजिकल जो भी तुम्हें महसूस होता है, वट एवर सेंस यू नाउ हैव ऑफ योर सेल्फ, both physically and emotionally, take it back into the task. Continue to work while being aware of your energetic state. तो तुम्हारी ऊर्जा कैसी है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं क्या है, उसकी सजगता के साथ फिर वो काम करो. और वो सजगता आने के वजह से क्या वो काम आसान हो गया या कठिन रहा, इसको देखो. क्यों मैं रिपीट कर रही हूँ? अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज कोई शेयर करना चाहेगा क्या? किसी ने इसका ट्रायल लिया? सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज पढ़ने से पहले फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, इसका अनुभव अगर तुम में से किसी ने लिया हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर करो कि कैसा रहा तुम्हारा अनुभव. एनीबॉडी? नोबॉडी? ओ
कैसे होगा? सिर्फ किताबें पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। साथ में जो प्रैक्टिस सेशंस देते हैं इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ऑलराइट, अभी मैंने आपको दोबारा याद दिलाया है, प्लस मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, तो प्लीज उसको पढ़ो जो लिखा है वो, और अनुभव लो, और वो कल परसों मुझसे शेयर करो। हाँ, कम से कम 3-4 जन तो पर डे शेयर कर ही सकते हैं, तो इसका अनुभव लो और शेयर करो। वो अगर अनुभव हुआ है, लेते हैं, तो ये चैप्टर 2 का एक्सरसाइज अब मैं बता रही हूँ, और आज ही मैं इसका फोटो डाल देती हूँ ताकि ये भी आप कर पाओ। एक्सरसाइज ऑफ सेकेंड चैप्टर इज ऑब्जर्विंग योर मोटिवेशन। तुम्हारी प्रेरणा क्या है, इसको देखना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसमें भी 3 स्टेप दिए हैं। कह रहे हैं, choose one day to focus on what motivates your various activities and behaviors. In particular, you want to observe how you tend to navigate between criticism and the need for approval. Okay, खुद को ऑब्जर्व करो कि वो कौन सी चीज है जो तुम्हें प्रेरणा, ये पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन नेगेटिव भी, जो भी मोटिवेट, कौन सी चीज तुम्हें मोटिवेट करती है, और तुम्हारी जो भी तुम करते हो एक्टिविटीज या तुम्हारा बिहेवियर जो होता है, इसके पीछे कौन सी चीज है जो मोटिवेट करती है। और पर्टिकुलरली ये देखो कि कैसे तुम क्रिटिसिज्म एंड नीड ऑफ अप्रूवल, क्रिटिसिज्म यानी खुद को कोसना, खुद को भला भला बुरा कहना, हाँ, तो ये खुद को क्रिटिसाइज करना, ये, और अप्रूवल की तुम्हारी जो नीड है। हम सब चाहते हैं हमको अप्रूवल और अप्रिशिएशन मिले। अरे वाह, तुमने अच्छा किया, खुद के पास से या दूसरों के पास से। लेकिन देखो तुम कितने मेहनती हो, देखो तुमने कितना हार्ड वर्क किया है, देखो तुम कितने प्यार से बात करती हो। वो मेरा नाम जोकर की तरह, देखो अंदर से तो तुम्हारा दिल रो रहा था, लेकिन तुमने कितनी मुस्कुराहट, चेहरे पे मुस्कुराहट लाके बात की। There can be so many things, what all we do for self approval. तो self, not only self approval but need for approval, दूसरों के पास से या खुद के पास से वाह वाह मिलने के लिए हम क्या क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, एट पूरा दिन के लिए ऑब्जर्व करो, कोई भी एक दिन चुनो, सिलेक्ट करो, और दिन भर खुद को क्रिटिसिज्म एंड नीड फॉर सेल्फ अप्रूवल, इस बात को लेके ऑब्जर्व करो। दिन के आखिर में, एट द एंड ऑफ द डे, मेक 2 लिस्ट, 2 लिस्ट बनाओ। One consists of all activities motivated by the desire to avoid criticism. चलो यार, ये काम कर लेती हूँ, अगर मी घर नाही आवरलं ना, मग आल्यावर मला बोलणी खायला लागतील। ती बोलणी खायला खायला नाही लागू नये म्हणून आवरणं। या मेरे को ये काम आज देके गया यार, आज तो मैं कम से कम ये कर लेती हूँ, वरना मुझे डांटेंगे या सुनाया जाएगा, कोई भी हो। आज बेटी बोल के गई या बेटा बोल के गया, मम्मा आज ये बना देना, और फिर अगर तुमने नहीं बनाया तो गिल्ट। हाँ, मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ अलग अलग। One list consists of all activities motivated by the desire to avoid criticism. आज देव पूजा नहीं की, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, खुद को बोलोगे। कोई तुम्हें घर में नहीं बोलने वाला है कि आज तुमने पूजा क्यों नहीं की। यार मेरे में सातत्य है ही नहीं, आज देखा, आज फिर से मेडिटेशन मेरा मिस हो गया। हाँ, ये बुरा ना लगे, गिल्टी फील ना हो, इसलिए मैं बैठ के मेडिटेट करूंगी। तो ये एग्जाम्पल बन गया, डूइंग समथिंग टू अवॉइड क्रिटिसिज्म। आ रहा है ध्यान में फ्रेंड्स? इज द पॉइंट क्लियर? या रश्मि, इज इट क्लियर? या, so this is
to avoid criticism, separate those activities aimed at avoiding the criticism of others from those aimed at avoiding self criticism. दोनों के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए कि आज अगर मैंने घर पूरा साफ सफाई करके नहीं रखी ना, तो शाम को आके ये बोलेंगे कि क्या ये कैसे किया है तुमने, क्यों नहीं करके रखा। या आज मैंने फोन का बिल नहीं भरा ना, तो आज फिर डांट पड़ेगी कि यार, तो ये दूसरों का क्रिटिसिज्म हो गया, उसके वजह से जाके तुमने बिल भरा। और सेल्फ क्रिटिसिज्म, जो मैंने मेडिटेट नहीं किया, पूजा नहीं की, देखा आज मैंने सुबह उठ के नाश्ता कर लिया, हल्दी का पानी ही पीने को भूल गया। यू नो, देयर कैन बी स्मॉल लिटिल रोज की जिंदगी की, रोज के जो काम है, बिल्कुल रोज के जो काम है, ये इसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म और दूसरों से क्रिटिसिज्म, उनसे क्रिटिसिज्म ना मिले, खुद से क्रिटिसिज्म ना मिले, ये दोनों को अलग अलग लिस्ट में लिखना। दूसरों के क्रिटिसिज्म अवॉइड करने के लिए क्या क्या तुमने किया, और सेल्फ क्रिटिसिज्म अवॉइड करने के लिए तुमने क्या क्या किया, इसकी दोनों लिस्ट अलग बनाना। द सेकेंड लिस्ट, तो ये एक बन गया, और दूसरा लिस्ट कंसिस्ट ऑफ एक्शंस मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू गेन अप्रूवल। हाँ, अरे वाह, कितना मस्त, यू नो, दूसरों से तारीफ या खुद से तारीफ पाने के लिए तुमने आज जो जो काम किए दिन भर में, इसकी एक अलग से लिस्ट बनाना। क्लियर? अगर यहाँ पे नहीं शेयर करना है तो ग्रुप पे जरूर अपनी लिस्ट शेयर करना। हाँ, इस हफ्ते में किसी भी एक दिन को चुनना और ये दोनों लिस्ट बनाना, बहुत अच्छा एक्सरसाइज रहेगा। शायद आपकी लिस्ट में मुझे मेरा भी दिख जाए। हाँ हाँ, ये वाला मैं, ये मेरे लिए भी सही है, लेकिन मैं डालना भूल गई। या शेयरिंग इज ऑलवेज गुड. So the second list consists of actions motivated by the desire to gain approval. Separate in the same way between the desire for others approval and the desire for self approval. अब इसमें भी दो कॉलम बना देना, सेल्फ अप्रूवल का और दूसरों का अप्रूवल के लिए तुमने आज क्या क्या किया। हाँ, आ रहा है ध्यान में होमवर्क? इज इट क्लियर चारू जी? समझ में आ रहा है? बिल्कुल, ऑल राइट। सो ये, और इसके बाद स्टेप 3, कंपेयर द टू पार्ट्स ऑफ ईच लिस्ट टू सी which activities are directed towards others and which are directed towards your own judge. कौन से दूसरों की है, दूसरों के लिए, और कौन सा खुद के जज के लिए तुमने, कौन से एक्टिविटीज तुम्हारे होते, इसको देखो। और ये देखो, डू दे ओवरलैप? क्या ये दोनों लिस्ट में वही आ गया, ओवरलैप हो गया? सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ अप्रूवल, अदर्स क्रिटिसिज्म एंड अदर्स अप्रूवल, इसमें दोनों, ये दो लिस्ट जो हमने निकाली है, इसमें सेम एक्टिविटी दोनों तरफ आ गया। इसको भी देखो, मैं अभी यही सोच रही थी, but I will not share what the thought came to me right now because I want you to experience it. Do they overlap? इसको देखना. Is your avoidance of criticism list longer than your desire for approval list or vice versa? And why? कौन सी लिस्ट ज्यादा लंबी है, क्यों? आई थिंक ये बहुत बड़ा कॉन्क्रीट स्टेप है खुद को जानने के लिए। हु एम आई? हाँ, खुद को जानने पहचानने के लिए मेरी एक्टिविटीज का मोटिवेटर कौन है? हु मोटिवेट्स, व्हाट मोटिवेट्स माय एक्टिविटीज एंड माय बिहेवियर? बिहेवियर के बारे में, वर्तन जिसको हम कहते हैं ना, जैसे बर्ताव करते हो, तो तुम नहीं चाहते पर फिर भी तुम वो करते हो। लाइक तुम नहीं चाहते वहां पे जाना, लेकिन फिर भी तुम चले जाते हो बिकॉज नहीं नहीं चल चल बोला गया, या तुम वहां जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये खुद ने खुद को बोला। या सो योर बिहेवियर एंड योर एक्टिविटीज मेक टू लिस्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ अप्रूवल, और सेल्फ क्रिटिसिज्म के अदर्स क्रिटिसिज्म एंड अदर्स अप्रूवल, ऐसी दो लिस्ट बनानी है। इज इट क्लियर? Okay, I'll share this today itself so that you can make a list. Yeah.
Anybody who wants to put on their videos and show me your faces, a few more people, so that I know कि मैं बोल रही हूँ ये आपको समझ में आ रहा है. Can you give me a few Can I get a few thumbs up? Is it clear? ऐक ना, खूप मोठा प्रश्न आहे. करायचं आहे हे होमवर्क आपला. वेगळा प्रश्न आहे. वेगळा प्रश्न आहे. ह्याच्या पूर्वी कधीतरी अप्रुव्हल हवं असं वाटलं असेल. हा, आता त्याची गरजच नसते. त्या लिस्ट मध्ये काहीच नाही येणार आहे. मग तू काही नाही आलं तर अतिउत्तम आहे. तू मी काय म्हणते, असं आता हे पण आपला इनर जज, आपला माइंड बोलतोय आपल्याशी, पण ऍक्च्युअली दिवसभर ऑब्झर्व कर आणि त्या दिवसाच्या अखेरला लिस्ट बनते की नाही बनते तू मला सांग. नाही, मला वेगळा प्रश्न विचारायचा आहे तुला. हा बोल. पण अशा गोष्टी होतात, दुसऱ्याच्या अप्रुव्हलचं तर काहीच नाही, म्हणजे तेवढ्यासाठी तर नाही, कोणी नाहीच आहे कारण असं काही करणार मागे. बघ ना, आय विल से अगेन, यू डोंट नो. आता असं पण नाही वाटत की मला पण हे करायचंय, पण काही गोष्टी इतक्या हॅबिच्युअल झाल्यात की घर क्लीन नाही राहिलं तर बेचैन होतं. त्याच्यासाठी ते बेचैन होतं, हेच इकडेच आलं तुझं अप्रुव्हल. ते बेचैन क्रिटिसिझम अप्रुव्हलचा भागच बनला की. म्हणजे मग आता हे कुठल्या लिस्ट मध्ये टाकायचं असा प्रश्न आहे माझा. म्हणून तिसऱ्या स्टेप मध्ये प्रश्न आहे, डू दे ओव्हरलॅप? दोन्ही लिस्टवर येतं का बघ. बऱ्याच अशा गोष्टी होत असतील ज्या दोन्ही लिस्ट मध्ये येणार. येस सुहास, डू यू अग्री विथ दिस? Yes. Is it making sense to you? Yeah. Yes. Yeah. Smita, you want to say? Suhas, you want to ask something? No. All right. I agree with this point. You agree with this? Yes. Thank you. And Smita, you want to? मी आत्ताच जॉईन झाले. Oh, तू just join झाले. All right. Yeah. Anybody else? और किसी को कुछ उदाहरण देने हैं या कुछ पूछना है? Before we go to the third chapter. Let's. Yeah, even I had the same thing. Now there is nothing that I need approval of anybody or even mine. That is what we think. Again, I'm telling you, Shailaja, ऐसा हमको लगता है. पर कहने की बात, अगर कल का पूरा दिन ऑब्जर्व करने के बाद भी तुम्हें ऐसा ही लगे तो वो तुम्हारा सत्य है. तो वो लिखो कि आज दिन भर मैंने ऑब्जर्व किया. लेकिन अभी फॉर एग्जाम्पल वैशाली जैसे बोली कि रेस्टलेस, आदत से मजबूर, दैट इज कंडीशनिंग. That is a part of her belief system which is so deep rooted that if she doesn't do it, she will become restless. और यही हालत हम सबकी है. Can you be just comfortable not doing certain things? Especially जो लोग जिनको अभी, because वैशाली ने क्लीनलीनेस की बात की, I know, you know, फिक्सेशन होता है, फोबिया होता है क्लीनलीनेस का. अगर घर देखा जाए तो तुमने 2 दिन क्लीन नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? क्योंकि तुम जैसे बोल रही हो, लाइक यू एंड श्रुति एंड वैशाली एंड हस्बैंड, यू आर जस्ट 2 people in the house. कौन सा घर खराब हो रहा है? You can even, you know, probably dust it every other day or every 2-3 days. But do you do it? No, you do it every day. Why? नाही, आता डेली नाही काही होत. That's good. तरी सुद्धा एक I'm comfortable. वाटतं की अरे हे व्हायला पाहिजे, असं काय टाकलंय आपण. हाँ. 2 दिन सोफे पे कपड़े पड़े रहे और तुमने तय नहीं किए तो चलेगा क्या? देख लो. No, these are just ह्या म्हणजे ह्या छोट्या गोष्टी झाल्या इन अ वे, जे आपण नेहमी नाही करत, पण रोज सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत दिवसभरात तुमचं जे काही दिनक्रम असेल, जे काही दिनचर्या असेल, त्या दिनचर्यामध्ये कुठली गोष्ट दुसऱ्यांना खुश करायला तुम्ही केलेली आहे, कुठली गोष्ट स्वतःला खुश करायला तुम्ही केलेली आहे, दुसऱ्यांची बोलणी खायला नको म्हणून केलेली आहे, स्वतःची बोलणी खायला नको म्हणून केलेली आहे. असे 2 लिस्ट बनवायचे. जर तुमच्या सगळे एनलाइटन, बरेच जण एनलाइटन सोल्स आहेत तिकडे, इफ नो लिस्ट कम्स अप दॅट्स फाईन. इफ ओनली 1 थिंग कम्स अप दॅट इज ऑल्सो फाईन. काय मिळवलं? ऍटलीस्ट दिवसभर सजगतेमध्ये राहिलात. At least you were in awareness of criticism and approval throughout the day. If nothing else, there is no loss. Win-win situation.
या हा स्वाती काय म्हणते बोल. आताच मी जाऊन आले रत्नागिरीला. हा तर तिकडे एका नातेवाईकांकडे गेलो होतो हा आणि तिथे गेल्यावर मला असं जाणवलं की सकाळी उठल्यापासून म्हणजे ब्रेकफास्ट पासून रात्री जेवणापर्यंत त्या ज्या घरात बाई होत्या त्यांना घरातल्या प्रत्येकाने म्हणायला पाहिजे असतं की आज चपाती चांगली झालीये, आज डाळ चांगली झालीये, रोज आज म्हणायला पाहिजे जेवण रोज चांगलं आणि झालं. प्रत्येक ह्याला. आणि मला विचार डोक्यात आला, अरे आपण हे कोणी जर नाही बोललं तर आपण गृहीत धरलंय की चांगलंच आहे. हा आणि आता परिस्थिती अशी आहे की समजा मीठ जरी कमी झालं तरी काय, नवरा चालून हळूच जातं. उठेल आणि बरणी घेऊन त्याच्यातून थोडंसं मीठ घालून घेईल. आपल्याला कळतं हो की कमी झालंय. हा आणि आपल्याला बोलून दाखवलं जात नाही. पण नाही तिकडे ती माझ्याच वयाची आहे आणि तिला अजूनही ते अप्रिसिएशन पाहिजे म्हटल्यावर मला असं काहीतरी कुठेतरी असं वाटलं हा की या वयात पण अजूनही हे लागतं Yes. का आपल्याला. अगदी खरं हे उदाहरण घेतलंयस तू स्वाती. रोज सांगायला लागतं की भाजी चांगली झाली. हा नाही सांगितलं ना की लगेच विचारणार भाजी झाली का बरोबर. हम्म. एव्हरी डे. आता हे जर हे या गोष्टींमध्ये अगर आप लोगों का ये चीजें, जैसे मैंने कपड़े तय करना बोला या वैशाली ने घर साफ सफाई बोला या जो भी हमने अभी ये खाना के बात हुई, अगर ये चीज से तुम ऑलरेडी उठ चुके हो तो उस जो भी तुम कर रहे हो अभी, बाकी की जो तुम जो भी कर रहे हो, इसमें कितना अप्रूवल डिसअप्रूवल क्रिटिसिज्म एंड अप्रिशिएशन, ये इसके बारे में सोचो, उसको ऑब्जर्व करो, थॉट्स में ऑब्जर्व करो कि अरे इतनी सी बात मेरी ध्यान में नहीं आई. यू आर क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ. जब तुम खुद से कहते हो कि अरे इतनी सी बात मेरी ध्यान में नहीं आई, तो ये खुद को क्रिटिसाइज करना हुआ. और कोई तुम्हें कहता है कि यार समझ में नहीं आ रहा है, ये दूसरों का क्रिटिसिज्म हुआ. हाँ? और आणि मुझे समझ में आ रहा है, ये दिखाने के लिए मैं जो भी करती हूँ वो अप्रूवल हुआ. क्लियर. हाँ बोल हो. स्वाती. हाँ. आणि मला त्यावेळेला असं वाटून गेलं की अरे अजूनही खाणं पिणं कपडे ते चांगले घालणं आणि ह्याच्या पलीकडे आयुष्य जातच नाहीये का. त्याच्यातच फिरतायत अजूनही. हाँ. म्हणजे असं नाहीये की चांगल्या मोठ्या पोस्ट वरून रिटायर्ड झालेली माणसं आहेत. असं हा. नाहीये की त्याचं काय अगदी एज्युकेशन, साध्या तुमचं एज्युकेशन, तुमचं करिअर, तुमचं फायनान्शियल, सोशिओ फायनान्शियल इकॉनॉमिक सिच्युएशन ह्याचा आणि ह्या गोष्टींचा अवेअरनेसचा किंवा क्रिटिसिझम ह्याचा काही संबंध नाही. म्हणजे ते मला तिथे असं व्हायला लागलं हम्म. की किती म्हटलं साध्या गोष्टी आहेत, नेहमीच्या गोष्टी आहेत आणि आयुष्यभर आपण त्याचीच अपेक्षा करून 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 पुढे करून जातो. लाईफ काढत असतो. खरं त्याच्या बाहेरचं विश्वच बघत नाहीये. आय थिंक इट्स व्हेरी क्लिअर. आलंय लक्षात की काय लिस्ट काढायची है, काय ऑब्जर्व करायचं है. आणि अभी भी किसी को शंका है, आ गया ध्यान में होमवर्क क्या दिया गया है, और ये वाला होमवर्क तो करना ही है. हाँ प्लीज. આરતીબેન, હા. પોતાનું ક્રિટિસિઝમ, બીજાનું ક્રિટિસિઝમ, પોતાનું અપ્રુવલ અને બીજાનું અપ્રુવલ. બરાબર. એના માટે થઈને તમે શું કરો છો, એક્ટિવિટીઝ અને બિહેવિયર બે. ઓકે ઓકે. હા એની નોંધ કરવાની છે, એની લિસ્ટ કાઢવાની છે. આખો દિવસ ઓબ્ઝર્વ કર્યા પછી સાંજે કાં તો રાત્રે એ લિસ્ટ બનાવવાની. ओके. અને अगर भूल जाओगे ऐसा लगता हो तो यू कैन कीप अ नोट पैड एंड कीप एडिंग. एक दो शब्द में नोट्स बनाते जाओ दिन भर, एंड देन यू कैन मेक अ प्रॉपर नोट एट द एंड ऑफ इट, प्रॉपर लिस्ट. ऑलराइट. और उसमें ये देखना है कि कौन सी चीजें दोनों लिस्ट में आती है और कौन सी लिस्ट ज्यादा लंबी है और क्यों, ये रात को सोचना. ओके. लिस्ट निकालने के बाद. दैट इज द पार्ट ऑफ थर्ड स्टेप. मैं ये डाल देती हूँ व्हाट्सएप पे इसका फोटो निकाल के, और प्लीज ये तो करना ही है. और जो फर्स्ट चैप्टर का जो होमवर्क था, जो एक्सरसाइज थी, उसको करने को तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे. हाँ 5 मिनट्स का एक्सरसाइज. प्रैक्टिस की थी, लेकिन काम करने के टाइम ही खुशी थी अंदर, तो बीच में भूल गई. अच्छा. वेरी गुड. खुश होके ही काम किया करो आप. All right, chalo. Now, shall we move on to chapter 3?
बिकॉज मैं कहानी फ्रैंक और स्यू की आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है कि अब ये फ्रैंक और स्यू का क्या हुआ, राइट? याद है ना स्टोरी दोनों की? हाँ, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ी थी। लेकिन उसके पहले ये जो बायरन ब्राउन है, इनके गुरु जो है A.H. अल्मास, उनकी एसेंस नाम की किताब में से पेज नंबर 134 एंड 137 में से कुछ लाइनें यहाँ पे दी है। ओके, ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन। तो अब ये जज कौन है, कैसा है, इसके चेहरे कितने हैं, ये कैसे फंक्शन करता है, और इसको अगर हमको ओवरकम करना है तो हमें क्या क्या करना होगा, थोड़ी सी हिंट हमें सेकेंड चैप्टर में मिल गई। अब उससे आगे, the superego is a structure that forms the apex of the psychic structure and includes the ideals of the personality and the principles of judgment. It is the seat of what is customarily called as the conscience. It develops mainly by internalizing and identifying with the prohibitions, rules, values, and preferences of the parents and the society at large. तो ये जो हमारा जज है, जो हमारा सुपर ईगो है, ये जो हमारी मानसिकता इसके वजह से बनती है, और ये मानसिकता हमारे व्यक्तिमत्व का, पर्सनालिटी का भाग बन जाती है, और यही जजमेंट का आधार भी बनती है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्शियंस, या कोई लोग कॉन्साइंस भी बोलते हैं, या कॉन्शियंस, if you are an American or a British English, depending the pronunciation comes. Now what happens is, how does this inner conscience develop? It develops mainly by internalizing and identifying with the prohibitions, rules, values, and preferences of the parents and the society at large. माता पिता से सीखे हुए उनके अप्रूवल, डिसअप्रूवल, उनकी सीख जो भी हम लेते हैं, और सिर्फ माता पिता की नहीं, तो ये पूरे समाज के पास से हम जो भी नियम, जो भी वैल्यू, जो भी प्रेफरेंसेस, यानी ये अच्छा है, ये नहीं है, ये जो भी चीजें हम इनके पास से सीखते हैं, उसको हम हमारे अंदर बसा देते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम का भाग बन जाता है, और उस तरह से फिर हमारा व्यवहार होता है, उसी तरह से हमारी सोच होती है, और उसी में से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ आधे अधूरे कपड़े पहनना बुरा माना जाता है, हमें शर्म आती है, हमें विचित्र लगता है। हमने अगर पहली बार, याद करो जब तुमने शॉर्ट स्कर्ट पहनी हो या शॉर्ट्स पहने हो या जो भी हो, तो लोगों ने तुम्हारे सामने कैसे देखा था, तुमने खुद के सामने कैसे देखा था। वही बात जो यूरोपियन माइंडसेट में है, वो लोग हमारे जितने कपड़े देखकर बोलेंगे, यार आदमी है, कौन है, कितने कपड़े पहनते हैं ये लोग, राइट? सो ये जो पेरेंट्स एंड सोसाइटी एट लार्ज जो है, इन्होंने जो हमें वैल्यू दी है, इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, इन्होंने जो यम नियम लगा के दिए हैं, या प्रोहिबिशंस या प्रेफरेंसेस हमें दिए हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम का भाग बन जाती है। उसी में से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, और वही प्रिंसिपल्स ऑफ जजमेंट भी बन जाते हैं। जजिंग के लिए वो हमारे तत्व बन जाते हैं। From our perspective, the superego is the inner coercive agency that stands against the expansion of awareness and inner development. हमारे नजरिए से देखा जाए तो ये जो सुपर ईगो है, ये जो जज है, ये हमारा अवेयरनेस को फैलाने से या हमारा दृष्टिकोण को बड़ा होने से रोकता है, हमारे इनर डेवलपमेंट को रोकता है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ माइल्ड और रीजनेबल इट बिकम्स। छोटी से छोटी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात तक। इट इज अ सब्स्टिट्यूट एंड अ क्रूएल वन। हर चीज को वो जज करता है, और वो बहुत क्रूरता से ये काम करता है। फॉर डायरेक्ट परसेप्शन एंड नॉलेज, डायरेक्ट जो अनुभव है, प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, ये लेना, डायरेक्ट परसेप्शन लेना, दृष्टिकोण लेके उसमें से ज्ञान लेने से हमें वो रोकता है।
वो अपनी तरह का नजरिया में से हमें देखने को मजबूर करता है. Inner development requires that in time there be no internal coercive agencies. Coercive agencies किसको कहते हैं? Coercive यानी अंदर से जो खाता है ना वो. तो ये अंदर से वो तुम्हें कोरता है, अंदर से तुम्हें खत्म करता है, अंदर से तुम्हें सीमित करता है, अंदर से तुम्हें रोकता है. There will be instead inner regulation based on objective perception, understanding and love. जो भी चीज करो, जो भी चीज, जैसा भी व्यवहार करो, जो भी चीज देखो, सुनो, बोलो, जो भी हो, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. अगर ये है तो वही है, फिर वो क्लियरली तुम्हें दिखना चाहिए कि ये जो मैं देख रही हूँ वही वो चीज है. ये तुम्हारा डायरेक्ट परसेप्शन, ऑब्जेक्टिव परसेप्शन, उसमें से अंडरस्टैंडिंग और उसमें से प्रेम, लव, ये चीजें डेवलप होनी चाहिए. The best approach is to decrease the power and influence of the superego and to replace it with awareness as much as possible, all the way to the final and complete dethronement of the superego. આરતીબેન આગળની સેન્ટેન્સ નું જરાક રિપીટ સમજાવો ને. हाँ, तो आगे हाँ, तो उन्होंने वो क्या बोल रहे हैं, ये जो अंदर का जज है ना, वो अंदर से तुम्हें रोकता है, तुम्हारी प्रगति होने से तुम्हें रोकता है, वो अंदर से तुम्हें सीमित करता है. जितना तुम दृष्टिकोण फैलाना चाहो, वो बोलता है नहीं नहीं हाँ, इस कल्चर में नहीं चलेगा, नहीं नहीं हाँ, ये समाज में ये सब नहीं चलेगा, नहीं नहीं हाँ, ये सब इस घर में नहीं चलेगा. और वो तुम्हें वैसा व्यवहार करने से या वैसा कुछ भी करने से या सोचने से या बोलने से वो तुम्हें रोक देता है. तो कोएर्सिव एजेंसी यानी अंदर से खत्म करने वाली चीज बन जाता है ये सुपर ईगो. ये सुपर ईगो यानी हमारा जो अंदर का जज है वो. तो इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिविटी हम लूज हो जाते हैं, सब कुछ सब्जेक्टिव बन जाता है हमारे लिए. यानी इस समाज में, इस घर में, इस कल्चर में, इस संस्कृति में ये ठीक है, ये ठीक नहीं है. राइट? तो जो भी दृष्टिकोण हमारा है वो दृष्टिकोण ऑब्जेक्टिव रहता नहीं है. जैसा है वैसा उस चीज को हम कभी नहीं देखते, हम उसको कोई ना कोई जजमेंट देके उसको कोई ना कोई लेबल लगाते हैं. जो चीज जैसी है वैसी ही उसको देखना यानी ऑब्जेक्टिव परसेप्शन कहते हैं उसको. और वैसे देखने के बाद वो जैसी है वैसे ही उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग, और वैसे ही उसको उस पर प्यार करना. इसको अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड अनकंडीशनल लव भी हम बोल सकते हैं. तुमने कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं किए, नहीं नहीं तुम हमारे ये समाज की हो, इस समाज में घूंघट लिए बगैर नहीं चलता, या साड़ी पहननी कंपलसरी है, कुछ भी ले लो यार, छोटे से छोटा, या मर्दों के सामने बात नहीं करनी चाहिए, या तुमने तुम्हारा ओपिनियन नहीं बताना चाहिए. ये अंदर से हमें रोका जाता है. बाहर से हमें कोई रोके ना रोके वो बात अलग बन जाती है, लेकिन अंदर की आवाज हमें रोक देती है. नहीं नहीं हाँ, इनके सामने, ये बड़े बुजुर्ग है, इनके सामने तुम खुलकर जो तुमको तुम्हारा दिल जो सच्चाई जानता है वो सच्चाई तुमने नहीं बोलना, चुप बैठना है. राइट? तो ये एक बात हो गई. और उसके बाद में द बेस्ट अप्रोच, तो अब इसका क्या किया जाए? द बेस्ट अप्रोच टू डिक्रीज द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सुपर ईगो. जिसको ये लेखक जज कर रहा है उनके टीचर उसको सुपर ईगो बोल रहे हैं. कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात हो रही है, एक ही चीज की बात हो रही है. तो द बेस्ट अप्रोच इज टू डिक्रीज द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सुपर ईगो. उसकी ताकत कम करनी होगी, उस जज की, उस सुपर ईगो की. वो जो तुम्हें रोक टोक करता है उसकी ताकत हमको और उसका इन्फ्लुएंस हमको कम करना होगा. और ये कैसे होगा? हो सके उतनी सजगता, अवेयरनेस डेवलप करके ही होगा. इतने हद तक सजगता लानी है कि ये सुपर ईगो पूरी तरह से नष्ट हो जाए. ये पूरी तरह से जब तक नष्ट नहीं होता तभी तक हमने ये क्रिया करते, ये सजगता बढ़ाते रहने का काम हमको करते ही रहना होगा. ऑलराइट?
ओके, तो ये थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन बाय द ऑथर्स टीचर, ये हमने पढ़ा। अब हम आते हैं स्टोरी पे। आई वुड लाइक टू रीड द स्टोरी बिफोर वी क्लोज फॉर टुडे। ऑलराइट, तो ये फ्रैंक और सू थे। हमने देखा था कि वो सो रहे थे, फिर सू ने क्या सोचा, और फिर कि नींद नहीं आती इसके बारे में, और फ्रैंक ने क्या सोचा। वो चाहता था, फ्रैंक का दिन मुस्कुराते हुए स्टार्ट हुआ था और बेड के बाहर निकला तभी वो रूटीन डे बन गया था, और वो डिप्रेस, मतलब लाइफलेस ऐसा दिन उसका हो गया। अब फ्रैंक ने क्या किया? फ्रैंक वॉश्ड द स्लीप फ्रॉम हिज आईज एंड गेज्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर। वो बाथरूम में गया, मुंह धोया, उसने आंखें धोई, और फिर आईने में, बाथरूम के आईने में खुद की आंखों में देखा। His hair sticking up in all directions reminded him of his father's saying, he looked like a rooster in the morning. हाँ, तो उसके बाल सारे इधर उधर खड़े थे, तो उसको याद आया कि पापा हमेशा कहते थे, वो जो कोमड़ा कोमड़ा हिंदी में क्या कहेंगे उसको या मुर्गा, वो मुर्गे के बाल जैसे होते हैं ना, हमेशा तुम्हारे, उसके पापा उसको कहते थे मुर्गे जैसे बाल तुम्हारे हो गए हैं हर सुबह। As he leaned closer, he was aware of all the familiar aspects of his face. और वो और आईने के नजदीक गया और उसने खुद के चेहरे को देखा, और उसको अपना चेहरा बहुत ही जाना पहचाना। उसका टूटा हुआ नाक, his broken bone bent slightly to the right. उसके नाक की हड्डी टूट गई थी, तो वो थोड़ा सा राइट की तरफ बेंड हो गया था। which always bothered him when he looked in the mirror. और हमेशा आईने में जब वो देखता था कि अपनी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, और उसको हमेशा बुरा लगता था इस बात का कि उसकी नाक टेढ़ी है। द डस्टिंग ऑफ फ्रेकल्स ऑन हिज चीक्स, उसके गालों पे थोड़े स्किन चेंजेस ना, जो होते हैं फ्रेकल्स जिसको बोलते हैं, तो वो जो लाइंस आती है या कलर डिस्कलरेशन थोड़ा बहुत होता है, तो वो, एंड द डिम्पल्स फ्रेमिंग हिज माउथ, और पर उसके गालों पे डिम्पल्स थे, जिसके वजह से दोज बॉyish क्वालिटीज ही हैड मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट, जिसके वजह से वो बहुत जवान दिखते थे। लेकिन ये जवान दिखना, ये अच्छा या बुरा, वो तय नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बारे में उनको हमेशा मिक्स फीलिंग्स हुआ करती थी। हिज हेजल आईज सेट बैक डीप इन हिज फेस, उनकी आंखें जो थी वो डीप थी, मतलब, और क्या घरे, हेजल इज आई थिंक लाइट ब्राउनिश जैसी आंखें, कलर वाली। ओके, ओवरहंग बाय स्पार्स लेंथी आईब्रोज, उसके ऊपर बहुत पतली सी उनकी आईब्रो थी जो बहुत लंबी थी, लेकिन that curled down and caught on his eyelash in a way that often annoyed him. और उसकी वो जो भुवई थी, उसके आईब्रो थी, उसका एंड इतना लंबा था कि आंखों के जो पलके है, उसकी पलकों को छू जाते थे ऊपर के बाल। तो ये आईब्रो के बाल उसके आईलैशेस को यानी पलकों को छू जाती थी, जिसका उनको हमेशा गुस्सा आता था, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। The lines across his forehead by now permanently etched, though he would often rub his fingers over them, attempting with determined pressure to erase them. और उनके कपाल पे यानी उनके फोरहेड पे लाइंस बन गई थी, फोल्ड्स आ गए थे, और वो हमेशा उसे खींचा करते थे, उसको सीधी करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन वो अभी परमानेंट बन गई थी। His hairline had receded about an inch. उनके बाल 1 इंच पीछे हट गए थे, and the territory of his scalp was infiltrated with white settlers equal in number to the original dark inhabitants. पहले जितने काले बाल थे उतने ही सफेद अब हो गए थे, आगे के बाल खास करके उनके बहुत ज्यादा सफेद हो गए थे। ये सब उन्होंने अपने रिफ्लेक्शन जो आईने में दिख रहा था, ये सब अपने चेहरे, जो पहचान का चेहरा था, ये सब फिर से एक बार उन्होंने नोट किया, और फिर उनके मन में सोचा, यू लुक अ लॉट ओल्डर देन यू यूज्ड टू, पहले से तुम अभी बहुत बूढ़े लगने लगे हो। हाँ, पहले जितने जवान अब तुम नहीं दिखते। इन फैक्ट यू लुक अ लॉट लाइक योर फादर नाउ, यू रियलाइज दैट
अब तुम तुम्हारे पिता जैसे दिखने लगे हो। क्या ये तुम्हारे ध्यान में आ रहा है? इवन द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू योर हेयर एंड रब योर चिन, जिस तरह से तुम बालों में हाथ घुमाते हो, अपनी चिन को रब करते हो, ये भी बिल्कुल पिता जैसा है। द वर्स्ट थिंग, और पता है उससे बुरी बात कौन सी है तुम्हारी? द वर्स्ट थिंग दो इज हाउ यू पिक योर नोज लाइक हिम। किस तरह से नाक में आप उनके जैसे ही उंगली निकाल के डाल के नाक साफ करते रहते हो। आई कांट बिलीव यू हैव नेवर लर्न टू स्टॉप डूइंग दैट। मेरा विश्वास ही नहीं बैठता, अभी भी तुम वो आदत से वो करते रहते हो। ये आदत तुमने अभी तक छोड़ी नहीं, नाक साफ करने की। इट्स सो डिस्गस्टिंग। ये कितनी बुरी बात है। हाँ, ये उसके मन के जज ने, उसके सीखने को उसके जज ने ये बोला। एक सेकेंड, या now Frank observed the hair sticking out of his nostrils and wished his fingers didn't enjoy scraping the inside of his nose so much. अब वो नाक में उंगली डाल डाल के वो इतनी बड़े हो गए थे, उसके नॉस्ट्रिल्स अंदर के बाल दिखते थे, और उसने सोचा कि यार उसको इतना मजा नाक के अंदर खुजाने में, इतनी मजा उसको अगर नहीं आती तो अच्छा होता। He reached down and picked up his electric razor, flicked it on and carefully trimmed his nose hair and then his eyebrow hair. उसके बाद उन्होंने रेजर, इलेक्ट्रिक रेजर उठाया और बहुत संभाल के नाक के अंदर के बाल साफ किए, और ये जो उनके आईब्रो के बाल जो पलकों में जा रहे थे उसको भी उन्होंने ट्रिम किया। He pondered the state of his unshaved chin and decided to stay with the Indiana Jones look today. और फिर उसने सोचा दाढ़ी करूं या ना करूं, और फिर सोचा नहीं नहीं यार, आज छुट्टी करते हैं, आज दाढ़ी नहीं करते हैं। अंदर की आवाज बोली, गो अहेड, बी अ स्लॉब, बस आलसीपना करते रहो, गंदे बनकर घूमते रहो। आफ्टर ऑल इट्स सैटरडे एंड नो वन विल केयर। वैसे भी तो आज शनिवार है, जाने दो, कौन देखने वाला है। बिसाइड्स यू लव एनी एक्सक्यूज टू बी लेजी। और क्या, तुम्हें तो कारण ही चाहिए आलसीपने का, आलसीपना दिखाने का। मत करो दाढ़ी। ये अंदर की आवाज उनकी बोली। फ्रैंक वॉज यूज्ड टू ट्राइंग टू इग्नोर हिज जज। अब ये आवाज को ज्यादा ध्यान फ्रैंक देता नहीं था, उसको इग्नोर करता था। प्रिटेंडिंग व्हाट इट सेड डिडंट मैटर, और हमेशा सोचता था जाने दो, वो तो अंदर की आवाज बड़बड़ करती रहती है, ध्यान नहीं देना। टुडे ही रियलाइज दैट फेड इंडिफरेंस नेवर वर्कड। लेकिन आज उसको ध्यान में आया कि मैं उसको इग्नोर करता हूँ, उसको ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। He was just feeling withdrawn and hollow inside. अंदर से उनको एक खालीपन महसूस हो रहा था। Looking at himself in the mirror, he began to wonder what he was looking at besides the body he knew so well, with all the stories and judgments associated with it. आईने में खुद को देखने लगे और सोचने लगे कि क्या देख रहा हूं मैं? मेरे पहचान का इस शरीर को तो मैं देख रहा हूँ, और इस शरीर के इस अंग के हर भाग की अपनी अपनी कहानियां हैं, अपने अपने जजमेंट्स है। इसके अलावा मैं और क्या देख रहा हूँ खुद में? Was there anything else there? क्या इतना ही है या और भी कुछ है? Was it Frank looked in was there anything else there? Frank looked into his eyes and wondered what he was seeing. फिर उसने अपनी ही आंखों में देखा, आईने में, और सोचने लगा मैं क्या देख रहा हूँ? Was it just the analytic gaze of his own judge? क्या ये मेरा मन की आंख जो जज है, क्या ये जज मेरी आंखों में देख रहा हूँ? और was he seeing sadness and fear? या दुख और डर, इस चीज को मैं आंखों में देख रहा हूँ? Perhaps there was nothing there but emptiness. शायद मेरी आंखों में कुछ नहीं है, सिर्फ खालीपन है। Slowly it became clear that Frank was seeing curiosity in the eyes watching him. और वो अपनी ही आंखों में देखते गए, और फिर अपनी ही आंखों में उन्हें क्यूरियोसिटी दिखी, जानने की इच्छा। What is curiosity? It is a desire to know something, to gain some knowledge, to understand something, to see something, right? तो उसको अपनी ही आंखों में क्यूरियोसिटी दिखी।
It was seeing curiosity in the eyes watching him, a curious being clothed in a familiar body. शरीर तो पहचान का था, रोज का था, जाना पहचाना था, लेकिन इसके अंदर से जो झांकने वाला था, इसके अंदर से जो देखने वाला था, वो बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रहा था. He felt as if that curiosity were him. और फिर उसे एहसास हुआ कि अंदर से क्यूरियसली देखने वाला ये जो है वो मैं हूं, ना कि ये मन जो मेरा जज है, ना मेरा सुपर ईगो. आंखों के अंदर जो झांक कर दिखता है वो मैं हूं. सो ये स्टोरी इतनी ही यहाँ पे आगे चली, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर. But we say, you know, eyes are the windows to the soul. और that's a very good practice, you know, कि खुद की ही आंखों में खुद की ही आंखों पे त्राटक कर लो, झांक कर देख लो, अंदर देख लो, कौन देख रहा है तुम्हें, किसका प्रतिबिंब दिख रहा है तुम्हें. या यस. Anybody wants to say anything? क्या लगता है कितने जन ये करते हैं, आईने में देखते हैं खुद को और खुद के बाल, अपने आईब्रोज, अपने स्किन, अपनी आंखें, अपने हर चीज को देखते हैं और देखते रहते हैं और उसके बारे में जजमेंट देते रहते हैं. अरे तुम अब जरा बूढ़े होने लगे हो, अरे बाल तुम्हारे पीछे हटने लगे हैं, उम्र दिखने लगती है आईने में. हाँ, कितनों के साथ होता है? यस. यस ममता, होता है, सबके साथ होता है, हम सबके साथ होता है. वी ऑल लुक इनटू द मिरर ट्राइंग टू सी हु वी आर, क्योंकि अंदर से तो हम अलग महसूस करते हैं और बाहर से जो दिखता है वो भी अलग होता है. आई थिंक वी विल स्टॉप ओवर हियर. या किसी को कुछ कहना है? Anybody wants to share? होमवर्क करने वाले हो? Can I have a show of hands? हाँ नहीं. जितने हाथ ऊपर आए गिन लूं? नहीं, ये सब वॉलंटरी है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है. लेकिन हाँ, ये बात है, अगर हमने होमवर्क नहीं किया तो ये किताब पढ़ने में, इसको समझने में कोई मतलब नहीं बनेगा. अगर ये किताब, if we wanted to count, if we want to make this book count all the time that we are spending in reading and understanding it, then we have to work. We also have to do self-work. All right. Yeah, time up. Yes, hi Anjali. Vidya. Yeah, good to see you. काही नाही, तयारी चालू आहे म्हणजे त्यामुळे हो, तुझी तयारी असेल त्यामुळे. त्यामुळे मला अटेंड नाही करता आलं, बाहेरच होते मी ना. ओके. आजचं होमवर्क लक्षात आलं का पण? हो आलं. हा, आणि करायचंय हे. हो. Yes. Yes, Smita, all the best for your meditation. I meant to come today, but I'm not able to. I will see you. Thank It's just you, too no close, problem. too close, 5 o'clock. I will not be able to reach. All right. Thank you, everybody. Let's stop here and I'll see you tomorrow. हाँ, कल मिलते हैं. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you Yes. so much.